Sir Ramesh, who is the main character of my story, who is a garage owner, he once saw that an antique car is being parked in his garage. कल मैंने एक पिक्चर को दिखाया था तुम्हें जिसमें कुछ बच्चों ने बोला था सुसाइड कर रहे हैं. यू टेल मी कि इस पिक्चर में कहीं भी डायरेक्टली ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि कोई फाइन पे नहीं कर रहा है. सो दैट थिंग डज नॉट सूट. दिस थीम इज नेगेटिव. लेट्स कम टू हिज थीम नाउ. Welcome back again. Yesterday we had the class on TAT and SRT. Okay, and also we discussed few stories. Particularly we learned to associate correct theme with the pictures. Okay, उसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी जो हमने कल अपलोड की है YouTube पे. Today we will discuss one more picture in order to find out कि आप लोगों के अंदर कल और आज में कुछ improvement है कि नहीं. Alright? So this is the picture. Please see it properly. आयुष अच्छे से दिखाना. ठीक है. Please observe the picture very carefully. Surrounding the first layer, the second layer. फ्रंट में क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है. ओके, कहाँ क्या लिखा हुआ है, सराउंडिंग में क्या है. ओके ओके, जस्ट नंबर 1. What is your theme and what is your story? Short में. So the theme is around there's a fire next building, and my main character Ramu went outside, saw the fire, and tried to stop the fire from spreading until the firefighters arrive. Okay. You also write कि he also informed the firefighters. Just number 2. When I see the picture, I think Hari is the owner of Diamond Garage, and he is a professional in his duty. Like he is mechanics. Okay. Aim क्या है? He repaired the vehicles. And aim को थोड़ा ऊंचा करना है. आपकी स्टोरी के एम को हम इनहेंस करना सीखेंगे. ठीक है. Okay, sir. आगे नेक्स्ट. Sir Ramesh, who is the main character of my story, who is a garage owner, he once saw that an antique car is being parked in his garage, and upon police verification, it was found out that it was from the British period of time. So, with the help of the government gave the money to the car owner, and the car was bought and it was kept in the museum. ओके. कुछ एम नहीं निकल के आ रहा. अभी भी तुम एम नहीं बना पा रहे स्टोरी में. There's an inspector who is trying to do his duty, and there's a person who's not wearing a seat belt, has been stopped by the inspector, and since he's driving the car without seat belt, he's interrogating, and the guy is refusing to pay the charges. The guy is refusing to Pay the charges. Okay, next. The aim of my story is repairing of a car at a garage. Mohan, who is a corporate job worker, was going to his office when suddenly his car broke down. After many difficulties, he managed to get to a garage where he was told that the car engine was seized. After relentlessly of being tired, Mohan managed to get another car to reach his office. Okay. The aim of my story is to solve a problem with the help of passerby. Ravi is a 22-year-old engineer student, was traveling to a nearby town with his friends. On the way, car suddenly stopped in the middle of the road due to some mechanical problem, and Ravi analyzed the situations and pushed the car with the help of passerby people. Nearby garage named Diamond Garage mechanical found that there was a problem with the engine belt, And he rectifies it. Yes sir. Okay, fine. चलो इधर आ जाओ आयुष. 2 स्टोरी अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले एक चेस्ट नंबर 1 की कि what was your theme? There is a fire and he is trying to control the fire until the fire brigade comes. And this girl, what was your story? Inspector is trying to stop the car for a person who is not wearing seat belt, and he is denying to pay the fine also. Okay, पहले इससे ही शुरू करते हैं, है ना. कल मैंने एक पिक्चर को दिखाया था तुम्हें जिसमें कुछ बच्चों ने बोला था सुसाइड कर रहे हैं. यू टेल मी कि इस पिक्चर में कहीं भी डायरेक्टली ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि कोई फाइन पे नहीं कर रहा है. 100% श्योर. और वो बोल रहा है कि मैं फाइन पे नहीं करूंगा, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी.
क्या 100% बोल सकते हैं ऐसा? No, sir. नहीं, है ना? सो आपने सिर्फ एक पुलिसमैन को कार के बराबर में खड़े होते देखा और अंदर एक बंदे को बैठे हुए देखा, तो इस इक्वेशन से आपके माइंड में एक थीम आया कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी और ये उसको फाइन कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ये इससे कुछ पूछ रहा हो किधर जाना है, ये कुछ नॉर्मल इंटरेक्शन कर रहा हो सकता है उधर आगे कुछ फंक्शन चल रहा हो या कोई रैली चल रही हो या कुछ इस तरह का डाइवर्शन हो और पुलिस वाला यहाँ खड़ा होकर उसको बोल रहा हो द रोड इज ब्लॉक्ड on this path, so you need to take a left turn because there is a rally going on in the way. हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. है ना? What's your name? आयुषी. So वो कल वाली प्रॉब्लम फिर से निकल के आ रही है कि when you see two stimulus, उन दो स्टिमुलस से आपने जो एसोसिएशन किया, फाइन, denying to pay the penalty also, it's a negative association. पिक्चर में कहीं क्लियरली दिख रहा है कि ये फाइन पे करने को मना कर रहा है और ये इसने सीट बेल्ट नहीं बैठी हुई। तो सिर्फ एक कार के पास पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखने के बाद सिर्फ इतने से पॉइंट से आपके माइंड में क्या आया कि सीट बेल्ट नहीं पहनी और फाइन पे कर रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एसोसिएशन? इट इज अ नेगेटिव एसोसिएशन, है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कल जब समझाया गया तो फिर आज क्यों ऐसा किया? प्लीज डोंट डू दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एसोसिएशन किस तरह का हो रहा है। दूसरा, चेस्ट नंबर 1 है ना, अभी अगर इस बिल्डिंग के अंदर, इस रूम के अंदर फायर लग जाए कहीं पे, शॉर्ट सर्किट होके, तो टेल मी व्हाट विल बी योर बॉडी लैंग्वेज? यू विल कीप सिटिंग लाइक दिस? No, sir. कैसी होगी बॉडी लैंग्वेज मेरी, तुम्हारी, इस कैमरामैन की? There will be some kind of urgency in the body language. Yes, sir. Somebody will rush, somebody will run, somebody will panic, somebody will run towards the fire to control the fire. Body language. इसमें से किसी भी बंदे की बॉडी लैंग्वेज, कहाँ, ये तो दो बैठे हुए हैं इधर आराम से, यार किसी भी बॉडी लैंग्वेज में तुम्हें पैनिक दिख रहा है? टेल मी। No, sir. सो अगर ये फायर होती तो क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज में पैनिक होता कि नहीं होता? Yes, sir. So when you associate a theme, please understand कि सिचुएशन क्या चल रही है। फायर में एक्चुअली में बॉडी लैंग्वेज में कुछ तो अर्जेंसी तो होगी एटलीस्ट, इफ नॉट पैनिक। सो आई डोंट एग्री कि ये फायर होगी। बॉडी लैंग्वेज इज नॉट ऑथेंटिकेटिंग दैट ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट ऑथेंटिकेटिंग कि ये फायर होगी। अर्जेंसी दिखती बॉडी लैंग्वेज में। सो दैट थीम डज नॉट सूट, दिस थीम इज नेगेटिव। लेट्स कम टू हिज थीम नाउ। उसका एक गैराज है एंड ही इज जस्ट रिपेयरिंग द लोगों की व्हाट वी कॉल इट, गाड़ियां रिपेयर कर रहा है। एम नहीं है कुछ, एम लेना सीखो आप स्टोरी में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी स्टोरी में ही अगर मैं एक एम फिट करना चाहूं, मे बी राम हु इज द ओनर ऑफ दिस गैराज एंड ही इज open in this garage in the city after doing some kind of maybe mechanical engineers can open the garage. Yes. After having done the good mechanical engineering from good institute, he has opened a garage as a startup company. All right. He realized that there are a lot of vehicles which are spreading a lot of pollution because of being old in the city. All right. Maybe he, along with his research team or maybe with his friends, he find out some such kind of engine, maybe device, maybe modification in the old engines that the pollution emission of those engines reduced. And he then maybe जो उसके पुराने कस्टमर उसके पास आ रहे गाड़ी लेके, उसके साथ में उसने बताना शुरू किया और धीरे धीरे करके सिटी की बहुत सारी कार्स को which were old he transformed into the new cars. लोगों की पुरानी कार रीयूज भी होने लगी और एमिशन भी कम हो गया। क्या ये स्टोरी भी सूट कर सकती है इसमें? Yes, sir. सो जब आप एम लेते हैं, आपका एम, आपकी स्टोरी पॉजिटिव मूव कर रही है बट देयर इज नो एम इन द स्टोरी। आपकी भी स्टोरी पॉजिटिव मूव कर रही है, देयर इज नो एम इन द स्टोरी कि सिर्फ गैराज खराब हो गया ठीक करा के चला गया। कहाँ जा रहा था? ऑफिस जा रहा था, ऐसी क्या अर्जेंसी थी ऑफिस जाके? यू हैव टू टेक एन एम इन द स्टोरी। ओके, उस एम को किस लेवल का आप ले रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड यू हैव टू एसोसिएट अ करेक्ट थीम बेस्ड ऑन द इनपुट विच यू रिसीव फ्रॉम द पिक्चर। अगर बॉडी लैंग्वेज में अर्जेंसी नहीं है तो फायर मोस्ट लाइकली नहीं है ना? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट मेयरली बाय स्टैंड, सम पुलिसमैन इज स्टैंडिंग बिसाइड अ
कार वाला, इट डज नॉट मीन कि कार वाला लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है। आपको सिर्फ 2 इक्वेशन दिखी पुलिसमैन वाले की और कार वाले की, और आपने इस बेचारे कार वाले को नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना दिया बेचारे को, है कि नहीं? व्हाट इज योर साइक, है ना? और इतना खराब बना दिया उसको कि मैं पेनल्टी भी नहीं दूंगा भाई। और पुलिस वाले को अल्टीमेटली फिर तुम जेल, इस पुलिस वाले के थ्रू इसको जेल ही लेके जाओगे। तो कितना यू नो, हाउ डिड यू स्क्रू अप योर स्टोरी, हाउ डिड यू टर्न इट अप सो नेगेटिव? ठीक है, सो व्हेन यू, the 2 things you need to learn: first, see the picture carefully so that you associate correct theme with the picture. Second thing, while making the story, take a very clear aim. And third, while changing the aim, please understand वो aim negative तो नहीं है. Is there a possibilities of taking a positive aim into the given situation? Please learn this, okay?